We're going to start sequential experiments and tree diagrams, a very important topic. Many experiments consist of sequence of sub-experiments. कई ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर सब एक्सपेरिमेंट एक छोटा एक्सपेरिमेंट मजीद कर रहे होते हो या एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो. The procedure followed for each sub-experiment may depend on the results of the previous sub-experiment. और जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हो एक सब एक्सपेरिमेंट में वो हो सकता है किसी और पिछले सब एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट हो. We often find it useful to use a type of a graph referred to as a tree diagram to represent the sequence of sub-experiments. तो इसके लिए अक्सर एक ट्री डायग्राम जो है यूज की जाती है वो सीक्वेंस ऑफ सब एक्सपेरिमेंट्स को देखने के लिए. To do so, we assemble the outcomes of each sub experiment into sets in an event space starting at the root of the tree. तो एक root of the tree होती है, ठीक है. We represent each event in the event space of the first sub experiment as a branch, and we label the branch with the probability of the event. So there is some root, and then there are branches, right? Each branch leads to a node. हर branch एक node पे जो है वो lead करता है. The events in the event space of the second sub experiment appear as branches growing from every node at the end of the sub experiment. So these are nodes, and then there are more branches coming out of it. The labels of the branches of the second sub experiment are the conditional probabilities of the events in the second sub experiment. ये बाकी जो है ये क्या है, ये आपकी conditional probabilities हैं. We continue the procedure taking the remaining sub experiments in order. The nodes at the end of the final sub experiment are the leaves of the tree. Each leaf corresponds to an outcome of the entire sequential experiment. तो जो आखिरी एंड पे चीज आ रही है वो क्या चीज है, वो बेसिकली उसके लीव्स हैं और ईच लीव जो है वो आउटकम बता रहा है उस सीक्वेंशियल एक्सपेरिमेंट का जो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म किया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम is the product of the probabilities and conditional probabilities on the path from the root to the leaf. We usually label each leaf with the name for the event and the probability of the event. This is a complicated description of the simple procedure as we see in the following 5 examples. ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये सीक्वेंशियल ट्री है. सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी है जी B1 की, ये प्रोबेबिलिटी है B2 की, ये प्रोबेबिलिटी है B3 की. ठीक है, this is the probability of B1, this is the probability of B2, this is the probability of B3. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये जो probability है ना, ये probability है probability of getting accepted given that कि आप B1 में से आपने वो choose किया. This is the probability of N और rejected given that कि आपने B1 में से choose किया. ठीक है, तो these are the conditional probabilities, these are the unconditional probabilities, right? And ये B1A जो है ये basically product है 0.3 into 0.8 that becomes actually equal to 0.24. ठीक है, so if you want to find the probability of B1, this is the probability of B1, and this is the probability of A given B1. This is the probability of N given B1. This is the probability of A given B2. This is the probability of N given B2. This is the probability of A given B3. This is the probability of N given B3. And if you want to find the joint probability, for example, probability of B1 intersection A, then that would be the product of these two, 0.3 into 0.8. If you want to find probability of B1N, that would be 0.3 into 0.2, and so on and so forth for the rest of these. So let us try to solve this example 1.24 for the resistors of example 1.19. आपको याद होगा example 1.19 हमने की थी जिसके अंदर हमारे पास तीन जो है वो टाइप सी B1, B2 और B3. ठीक है, और we have used A to denote the event that a randomly chosen resistor is within 50 ohm of the nominal value, जिसमें हम जो है different kinds of resistors जो प्रोड्यूस कर रहे थे from B1, B2 and B3. और आपको याद होगा कि उसमें हमने ये बताया था कि B1 के अंदर इतने रेजिस्टर प्रोड्यूस होते हैं, B2 में इतने होते हैं, B3 में इतने होते हैं. और जब हमने उन सबका सम किया था तो हमें पता लगा था वो 10,000 था. और फिर उससे हमने ये फाइंड किया कि 3000 जो थे वो रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा था B1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आ गई थी 0.3. B2 जो थे वो 4000 कर रहा था, और इसी तरह जो B3 था वो 3000 कर रहा था. और ये हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द सेम एग्जांपल. दिस कुड मीन एक्सेप्टेबल. अच्छा, वी यूज द नोटेशन एंड नॉट एक्सेप्टेबल.
एन हम नोटेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिजेक्शन की या फिर नॉट एक्सेप्टेबल की फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. The experiment of testing a resistor can be viewed as a two-step procedure. First, we identify which machine B1, B2, and B3 produce the resistor. Second, we found out if the resistor is acceptable. Sketch the sequential tree for this experiment. What is the probability of choosing a resistor from machine B2 that is not acceptable? This two-step procedure corresponds to the tree shown in figure 1.2. सबसे पहले जो tree बनाओ ना, ये same example है. So you have to go through that example first. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 3 types of machines थी. हर मशीन में different number of resistors produce हो रहे थे और उससे हमने probability find कर ली कि probability of getting a resistor from B1 क्या है, probability of getting a resistor from B2 क्या है, probability of getting a resistor from B3 क्या है, और फिर this is the probability of a resistor getting accepted given that it was taken out from the machine B1. This is the probability of rejection given that the resistor is taken out from B1. This is the probability of acceptance given the resistor is taken out from B2, and so on and so forth. So this two-step procedure, to use the tree to find the probability of the event B2N non-acceptable resistor from machine B2, we start at the left and find that the probability of reaching B2 is 0.4, right? We then move to the right to B2N and then multiply probability of B2 by probability of N given B2 to obtain probability of B2N. तो probability of B2N का क्या मतलब है? Probability of B2N का क्या मतलब है कि आपका जो resistor है वो reject भी हो, ठीक है, और वो किस में से लिया गया हो, वो लिया गया हो फ्रॉम मशीन B2. सो इफ यू वांट टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस ट्री डायग्राम. तो ये बनेगा 0.4 into 0.1 which is equal to 0.04. सो B2N किस तरह आया? B2N आया बेसिकली आपका, अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 is equal to probability of B2N is equal to probability of B2 multiplied with probability of B2 given है. ठीक है, तो आप देखें ये बेसिकली वही फॉर्मूला है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N निकालनी तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N. ये वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो सम इवेंट कंडीशनड अपॉन समथिंग क्या होता है? उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2. तो ये बन गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N. आपके पास क्या चीज बनी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, दिस इज N गिवन B2, N गिवन B2. ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ N गिवन B2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N, यानी इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो आपके डिनोमिनेटर में, यानी जिसके ऊपर कंडीशन अपॉन होता है वो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ B2N निकालना है तो वो क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ N गिवन B2, यानी कि you have to multiply this probability of B2 and then B2 and probability N given B2, that would be equal to probability of B2N. It's simple multiplication. तो mathematically कर लो या tree diagram से कर लो, you will get the same answer. Right, so 0.04 is the answer. We observe in this example a general property of all tree diagrams that represent sequential experiments. The probabilities on the branches leaving any node add up to 1. Probability on the branches that leave any node, that should add up to 1. For example, ये देख लो 0.3 plus 0.4 plus 0.3, that should sum up to 1. वरना ये ट्री डायग्राम ही गलत है. भी एक नोड में से ऑप्शंस जा रहे हैं 3, ठीक है, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटीज को सम करो तो जवाब क्या आना चाहिए? जवाब आना चाहिए 1. ठीक है, सिमिलरली ये देख लो, इस नोड से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.8 है, ऑब्वियसली दूसरे की 0.2 होनी चाहिए. इसकी 0.9 है तो इसकी 0.1 है, सो दैट कि इनका सम 1 हो. 0.6 है, 0.4, दिस शुड सम अप टू 1. ठीक है, तो गिवन दैट कि भाई आप B3 अगर हो गया हुआ, यानी आपको ये पता है कि मशीन आपने B3 में से रजिस्टर लिया, अब या वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा. ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो जवाब क्या आना चाहिए? दैट शुड सम अप टू 1.
very important example. Please pay very close attention to this example. So suppose traffic engineers have coordinated the timing of 2 traffic lights to encourage a run of green lights. ट्रैफिक इंजीनियर्स हैं जी, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं 2 ट्रैफिक लाइट्स को आपस में, सो दैट कि रन ऑफ ग्रीन लाइट्स जो है उसको स्मूथ बनाया जा सके. In particular, the timing was designed so that with a probability of 0.8, a driver will find the second light to have the same color as the first. ठीक है, उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है, वो ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 0.8 हो, क्या ड्राइवर विल फाइंड द सेकंड लाइट टू हैव द सेम कलर एज द फर्स्ट. ठीक है, अगर पहला कलर जो है वो आपका जो भी कलर आया है, सेकंड का जो है वो भी सेम कलर आया. Assuming the first light is equally likely to be red or green, अगर पहली लाइट इक्वली लाइकली है कि वो रेड या ग्रीन आती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ G2? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो सेकंड लाइट है वो ग्रीन मिलेगी उसको, दैट इज सेकंड लाइट इज ग्रीन. ऑल्सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W? प्रोबेबिलिटी ऑफ W क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट यू वेट फॉर एटलीस्ट वन लाइट. क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कम से कम एक लाइट पे जरूर वेट करना पड़ेगा. तो आप जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, और 2 आपके पास सिग्नल आते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से एक सिग्नल पे लाजमी रुकना पड़ेगा. ठीक है, और इसका क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ G2? इसका ये मतलब है कि जो सेकंड इशारा आएगा, जो सेकंड सिग्नल आएगा, वो ग्रीन मिलेगा आपको. ठीक है, लास्टली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 गिवन R2? मैं ये बात रिपीट कर दूं, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसको मैथमेटिकली ना देखने लग जाया करो. उस क्वेश्चन को पहले ज़हन में उसका जो है एक उसका स्केच बनाओ कि ये बात क्या हो रही है. अब इसका क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 गिवन R2? तो ज़हन में जब सोचने लगो तो ये ना हो कि यार ये G1 है या R2. ज़हन में साथ सोचो कि क्या पूछ रहा है. ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला इशारा उसको ग्रीन मिलेगा, गिवन दैट कि सेकंड इशारा सॉरी गिवन दैट कि सेकंड इशारा उसको रेड मिला. क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला इशारा उसको ग्रीन मिला था. प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 गिवन R2 का क्या मतलब? गिवन दैट R2 हो गया भाई, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई है कि सेकंड इशारा जो है ना वो रेड मिला था. क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला इशारा जो है वो ग्रीन मिला हो? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन फर्स्ट लाइट गिवन अ रेड सेकंड लाइट. ठीक है, सो व्हेनेवर यू ट्राई टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्केच and try to imagine what the question is. In the case of two light experiment, the complete tree diagram क्या बनती है इसकी थी? सबसे पहले तो ये देखो ना, क्वेश्चन में आ रहा था जी, क्वेश्चन को तो समझ आ गई आपको. अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये बात आई थी कि assuming the first light is equally likely to be red or green. तो भाई सबसे पहले तो आपका जो नोड है उससे जो 2 आपके पास ब्रांचेस निकलेंगी, एक ग्रीन है और एक रेड है, और क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइट इक्वली लाइकली है कि वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है. तो इसका मतलब ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि आपको सेकंड लाइट भी वही मिले जो पहली मिली थी. 0.8 ये प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड लाइट भी वही मिले जो पहली मिली थी. तो जो ग्रीन में से ग्रीन की शाख निकलेगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.8. ये 0.8 क्या चीज है बेसिकली? 0.8 क्या चीज है? 0.8 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 गिवन G1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन G1 क्या होगा? 0.2. तो पहली सेकंड लाइट भी वही मिले जो पहली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8. तो दूसरी की कितनी होगी? 0.2 होगी. अगर पहली आपको रेड मिली है तो दूसरी भी रेड मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.8 गिवन इन द क्वेश्चन. तो ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.2. ये वाला 0.8 क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 गिवन G1. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन G1. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 गिवन R1. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द ट्री डायग्राम, और फिर आगे जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लो. किस तरह निकालते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन. What is the probability of G1 G2? This is 0.5 into 0.8. What is the probability of G1 R2? This is 0.5 into 0.2, which is equal to 0.1. What is the probability of this thing R1 G2? 0.1, 0.5 into 0.2, which is equal to 0.1. What is the probability of R1 R2? 0.5 into 0.8, which is 0.4. So first of all tree diagram आपने complete जो है यहाँ पे बना लिया. अब क्वेश्चन क्या था सबसे पहला आपको? What is the probability of G2? G2 की क्या प्रोबेबिलिटी? G2 की क्या प्रोबेबिलिटी? तो G2 जो है वो किन किन केसेस में G2 आ सकता है आपके पास? या तो इस केस में,
या इस केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 क्या आपके पास बेसिकली, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2 या ये यूनियन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 G2। प्रोबेबिलिटी ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ पे, यहाँ ये वाली है ना, यहाँ से आएगी कि पहली भी ग्रीन आई थी और दूसरी भी ग्रीन आई। दूसरी क्या ऑप्शन है ग्रीन आने की सेकंड लाइट पे, वो ये है कि पहले में आ रहा रेड आई थी लेकिन सेकंड में ग्रीन आ रही, ठीक है। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2 corresponding to this, and then probability of R1 G2 corresponding to this, right? So आपने क्या किया, इन दोनों को प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया एंड यू गॉट 0.5। सो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास सेकंड लाइट आपको ग्रीन मिलेगी बस, ठीक है। तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी द सेकंड लाइट वुड बी ग्रीन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब देखें ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपेरेंटली तो आप अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। वो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो दरमियान में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मिलके बना है, और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जो है उससे आपने ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर उससे आपने ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी G2 की निकाली। द इवेंट W दैट यू वेट फॉर एटलीस्ट वन लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W निकालो। W एक इवेंट है कि भाई आपने कम से कम एक लाइट का लिए इंतजार किया है, मतलब आपने एक लाइट के लिए इंतजार किया। सो द इवेंट दैट यू वेट फॉर एटलीस्ट वन लाइट इज, क्या ऑप्शन हो सकता है कि कम से कम एक लाइट के लिए आपने इंतजार किया। इसका मतलब कि भाई रेड आया, कम से कम दोनों सिग्नल्स में से एक में लाजमी रेड आया। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन लाइट। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहले सिग्नल पे रेड आया और दूसरे में ग्रीन आया हो, या उर्दू वाला या यानी और पहले में ग्रीन आया और दूसरे में रेड आया, और पहले में भी रेड आया दूसरे में भी रेड आया। तो ये तीन पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनमें आपको कम से कम एक लाइट पे लाजमी वेट करना है, राइट। So the probability that you wait for at least one light is probability of R1 G2 plus probability of G1 R2 plus probability of R1 R2। और ये सारी आप प्रोबेबिलिटीज जो निकाल चुके हैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज से। मैथमेटिकली अगर करते तो टाइम बड़ा ज्यादा लग जाना, तो टी डायग्राम बनाइए, सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और you have found out the answer to be 0.6। So 60% is the probability that you would have to wait for at least one light। Next, last part था इसका, what is the probability of G1 given R2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पहला सिग्नल जो था आपका वो ग्रीन था, गिवन दैट के सेकंड जो आपका था वो रेड था। क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 given R2 जो है वो क्या होगा। So probability of G1 given R2 is probability of G1 R2 divided by probability of R2 is simple formula of conditional probability। probability of R2 जो है वो 0.5 है, probability of G1 R2 is 0.1। So dividing these you will get 0.2। So 20% is the probability that the first signal was green, given that you have got this information कि आपका जो second signal है वो आपका red आया था। Next example 1.26। Consider the game of three। एक गेम ऑफ थ्री आपने कोई समझे कोई नई गेम जो है खेल रहे हैं, गेम ऑफ थ्री। यू शफल अ डेक ऑफ थ्री कार्ड्स। आपके पास तीन कार्ड हैं, एक एस का, एक टू का, एक थ्री का। यू हैव थ्री कार्ड्स, वन इज ऑफ एस, वन इज ऑफ टू एंड वन इज ऑफ थ्री। विद एस वर्थ वन पॉइंट, एस का है 1 पॉइंट। यू ड्रॉ कार्ड्स अंटिल योर टोटल इज 3 और मोर। आप कार्ड्स जो है वो निकालते रहते हैं, ठीक है, जब तक आपका टोटल जो है वो 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स आपके नहीं आ जाते, ठीक है। यू विन इफ योर टोटल इज 3, ठीक है। यू आर डिक्लेयर्ड एज अ विनर इफ योर टोटल बिकम्स 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ W। क्या प्रोबेबिलिटी है W की दैट यू विल विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या है, ठीक है, गिवन दैट यू हैव दीज इंफॉर्मेशन कि यू हैव अ कार्ड ऑफ एस, यू हैव अ कार्ड ऑफ टू, यू हैव अ कार्ड ऑफ 3, और एस का जो है वो 1 पॉइंट, ठीक है, और 2 और 3 के जो है वो 2 और 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड यू ड्रॉ कार्ड्स, और आप कार्ड्स ड्रॉ करते रहते हैं अंटिल यू गेट 3 और मोर, ठीक है। सो यू विन इफ योर टोटल इज 3, ठीक है, टोटल 3 हो जाता है तो आप विन कर जाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जीतेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। appears to you that it's not very much related to engineering, but that is how the things are। Sometimes you have to go through examples that are non-engineering based, but
you tend to get concept out of it for the topic that is under study. Let Ci denote the event that the card C is the ith card drawn. For example, 3-2 is the event that the 3 was the second card drawn. ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ना Ci, इसका मतलब है कि the 3 was the second card drawn. जो आपने second card पकड़ा था वो 3 था. ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है. So let's try to make the tree diagram first. ट्री डायग्राम ये है जी कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 3 कार्ड्स हैं, एस 2 और 3 का. ठीक है, तो एस 2 और 3 का कार्ड है और ये 1 आपने ये लिखा है कि ये आपका फर्स्ट आप जो कार्ड निकाल रहे हैं ये वो है. ठीक है, तो 3 आपके पास कार्ड हैं, हर कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, 1/3, क्योंकि 3 कार्ड हैं, तो कोई सा एक कार्ड निकालना है तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद जी आपके पास है जी 2. ठीक है, तो एस का कार्ड तो आ गया वो आपके पास. पीछे कितने कार्ड रह गए? एक 2 का कार्ड रह गया और एक 3 का कार्ड रह गया. एक 2 का कार्ड रह गया और एक 3 का कार्ड रह गया. ठीक है, तो 2 कार्ड हैं, तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ. 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ. अगर आपने पहला कार्ड जो है वो 2 लिया था तो आपके पास 2 कार्ड बच गए, एक एस का और 3 का. एस निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ. 3 निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ. ठीक है, बैक टू दिस पहला एस आया था, दूसरा आपके पास आया था 2. तो एस की हमने बताई थी वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू जो है वो 2 है. तो 2 + 1 3. आपने बताया कि जब 3 आ जाए ना तो आपने गेम बंद कर दी. ठीक है, तो 3 आ गया तो इसका मतलब मजीद इसमें ब्रांचेस नहीं निकल रहे. ठीक है, अच्छा, पहला 2 आया कार्ड, उसके बाद आपके पास 1 का कार्ड आया, अगेन गेम ओवर. पहला 2 का कार्ड आया, दूसरा 3 का आया, अगेन आपके पास 3 से बड़ा जवाब आ रहा है, गेम ओवर. अगर आपने पहला कार्ड ही 3 का निकाल लिया है, इट मींस कि आपने मजीद कुछ प्ले नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन that you draw cards until your total is 3 or more. You draw cards until your total is 3 or more. So if the first drawn card is 3, you don't need to draw any further. पहला 3 आ गया, इसका मतलब गेम ओवर हो गई. तो ये ट्री डायग्राम बनेगी जी. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन होगी अगर पहला एस और सेकंड में 2 आए, या पहले में 2 और सेकंड में एस आए, या पहले में 3 आ जाए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन आपकी जो है इन तीनों केसेस में अगर जो है वो हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी दैट यू विन इज दैट यू गेट ace in the first and 2 in the second, or you get a 2 at the first and a ace at the second, or you get a 3 at the very start. ठीक है, इन तमाम केसेस में ठीक है you will win. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इज A12 which is equal to 1/3, राइट. अच्छा, ये अब आपने कैसे निकाला है? ये आप इस तरह से निकाले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A12 कैसे आए यहाँ पे. ठीक है, 1/3 into 1/2 प्लस 2 and A2 to 1 and A2. ये कैसे आपके पास 1/3 into 1/2 and probability of getting a 3 at the very start, that is equal to 1/3. So you sum all of these and you get answer 2/3. Okay, so that is how you can see that making a tree diagram is always gives you a kind of a shortcut जिससे आप जो है जवाब निकाल सकते हैं. Next example is example 1.27. Suppose you have 2 coins. 2 coins है आपके पास, एक बाइस्ड है एक फेयर है. ठीक है, एक बाइस्ड है एक फेयर है, बट यू डोंट नो विच कॉइन इज विच. ये नहीं आपको पता कि यार कौन सा कॉइन जो है वो बाइस्ड है. कॉइन 1 इज बाइस्ड. ठीक है, कॉइन 1 जो है वो बाइस्ड है. इट कम्स अप हेड्स विद प्रोबेबिलिटी 3/4. यानी बाइस का ये मतलब है अनबाइस्ड कॉइन कौन सा होता है? जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो. जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो. ठीक है, सो अगर आपके पास कॉइन 1 जो है वो बाइस्ड है, तो इट कम्स अप हेड विद प्रोबेबिलिटी 3/4. इसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4. वाइल कॉइन 2 विल फ्लिप हेड्स विद प्रोबेबिलिटी 1/2. कॉइन 2 है, ठीक है, क्योंकि 1 बाइस्ड कॉइन है, उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. ठीक है, सपोज यू पिक अ कॉइन एट रैंडम एंड फ्लिप इट. आपने रैंडमली एक कॉइन फ्लिप किया और उसको फ्लिप किया. Let Ci denote the event that the coin I is picked. Let H and T denote the possible outcomes of the flip. H का मतलब head, T का मतलब tails.
Given that the outcome of the flip is a head, what is probability of C1 given age? The probability that you pick the bias coin. क्या probability है कि given that कि आपके पास head आ गया, क्या probability है कि आपने वो biased coin जो है ना वो उठाया था? Given that the outcome is a tail, what is the probability C1 given T that you picked the biased coin? इसका क्या मतलब है? Given that कि आपकी tail आ गई है, क्या probability है कि आपने वो biased coin उठाया था? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ ट्री डायग्राम उठाएं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्री डायग्राम को बनाना जो है ना वो बड़ा जरूरी है। आई तो आपको वो आपके क्वेश्चन को इजी कर लेता है, लेकिन उसको समझ के बनाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि भाई आपने कॉइन 1 लेना है या कॉइन 2 लेना है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू पिक कॉइन एट रैंडम। आप दोनों में से कोई एक कॉइन जो पिक करते हैं, आप तो बायस नहीं है ना, तो कॉइन 1 लेना है या कॉइन 2 लेना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? हाफ। क्या आपने कॉइन 1 लिया या कॉइन 2 लिया, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमने बात की थी कि कॉइन 1 जो है वो बायस्ड है, उसमें हेड जो है वो 3/4 आता है, 0.5 नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 3/4 टाइम्स उसका जो है हेड आता है, तो 3/4 आ गई जी। ये हेड की क्या प्रोबेबिलिटी? 3/4, यानी ये 3/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है? गिवन दैट व्हाट इज 3/4? so this is basically the probability of head given that it was taken from C1. Similarly, what is this? What is this? This is a probability of tail given that it was taken from biased coin. This is probability of age given that C2. This is the probability of T given that C2. Okay. And if you want to find the joint probability, you have to multiply these. So C1 age क्या चीज है? 1/2 into 3/4. C1 T की क्या probability है? 1/2 into 1/4. C2 age की क्या probability है? 1/2 into 1/2. C2 T की क्या probability है? 1/2 into 1/2, 1/4. राइट। सो क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन ये था कि आप मालूम करें प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 गिवन एज, गिवन दैट के हेड आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बायस्ड कॉइन। ठीक है, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, C1 एज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एज। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एज गिवन है 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एज क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एज है आपके पास C1 एज या C2 एज, दोनों केस में हेड आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज? ठीक है, दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, ये बेसिकली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन C2। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप डिनोमिनेटर में लगा रहे हो, विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एज क्या है डिनोमिनेटर में जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एज गिवन C2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये चीज किसके बराबर है? ये चीज किसके बराबर है? बेसिकली दिस इज बेसिकली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एज, और दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये है जी बराबर बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 एज। ठीक है, और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, टी डायग्राम से ये चीज बनाना आसान है। बेसिकली है टोटल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। Similarly, probability of C1 given T is probability of C1T divided by probability of T. And what is the probability of T? Probability of T is probability of C1T plus probability of C2T. Okay, which is in other words is probability of T given C1 into probability of C1 plus probability of T given C2 into probability of C2. Law of total probability. Right? So you have to solve this quiz 1.7. You have to solve this quiz, but using the tree diagram. You have to solve this quiz using the tree diagram. And with this, I will end today's topic, a very important topic, sequential experiments in tree diagrams, very important topic. I'm going to end here. And